شہر شہر گاؤں گاؤں کا آغاز کریں گے۔ ٹڈو آدم میں جمرار روڈ پر سیم نالے میں نہاتے ہوئے 5 بچے ڈوب گئے ہیں۔ اہل علاقہ نے 3 بچے بچا لیے جبکہ 2 بچے لاپتہ ہیں۔ ان کی تلاش جاری ہے۔ بچوں کا تعلق کھوسا برادری سے بچایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے ریسکیو کے کام کو آگے بڑھایا جائے۔ ٹڈو آدم میں جمرار روڈ پر سیم نالے میں نہاتے ہوئے 5 بچے ڈوب گئے ہیں۔ اہل علاقہ نے 3 بچے بچا لیے ہیں جبکہ 2 بچے ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ ان کی تلاش جاری ہے۔ بچوں کا تعلق کھوسا برادری سے ہے۔ مزید جانیں گے اسی حوالے سے نمائندہ نیونیوز ممتاز علی سے۔ جی ممتاز، مزید بتائیے گا۔ یہ ٹنڈو آدم کے قریب جمراؤ نہر ہے جس میں گرمی کی شدید شدت کی وجہ سے نہانے کے لیے 5 بچے اس میں ڈوب گئے تھے، جس میں سے 3 بچے علاقے مکینوں نے نکال لیے تھے۔ ابھی ایک بچے کی ناش ملی ہے، ایک بچے کی ناش ملی ہے، ایک بچہ ابھی لاپتہ ہے۔ مزید پولیس اور ٹوٹے تلاش میں جاری ہیں۔ جی ٹھیک، شکریہ ممتاز علی۔ بھکر میں دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے 2 بھائی ڈوب گئے۔ بھائیوں کو بچانے کے لیے تیسرے بھائی نے بھی چھلانگ لگا دی۔ دریائے سندھ میں ڈوبنے والے 2 بھائیوں کو زندہ بچا لیا گیا جبکہ تیسرے کی تلاش جاری ہے۔ بھکر میں دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے 2 بھائی ڈوب گئے۔ بھائیوں کو بچانے کے لیے تیسرے بھائی نے بھی چھلانگ لگا دی۔ دریائے سندھ میں ڈوبنے والے 2 بھائیوں کو زندہ بچا لیا گیا جبکہ تیسرے کی تلاش جاری ہے۔ بھکر سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے 2 بھائی ڈوب گئے ہیں۔ بھائیوں کو بچانے کے لیے تیسرے بھائی نے بھی چھلانگ لگا دی۔ دریائے سندھ میں ڈوبنے والے 2 بھائیوں کو زندہ بچا لیا گیا جبکہ تیسرے کی تلاش جاری ہے۔ ریسکیو کی ٹیمیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ بھکر سے یہ خبر ہے جہاں پر دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے 2 بھائی ڈوبے ہیں۔ بھائیوں کو بچانے کے لیے تیسرے بھائی نے بھی چھلانگ لگائی۔ دریائے سندھ میں ڈوبنے والے 2 بھائیوں کو زندہ بچا لیا گیا ہے جبکہ تیسرے کی تلاش جاری ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے نمائندہ نیو نیوز فیض رسول سے۔ جی فیض، مزید بتائیے گا۔ فیض رسول، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، ریسکیو آپریشن جاری ہے؟ جی میں سن پا رہا ہوں۔ 3 بچے گھر کے قریب دریائے سندھ میں نہانے گئے جن کی عمریں 9، 8 اور 13 سال ہے، جو دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے۔ جنہیں دریا پر موجود بستی کے لوگوں نے ڈوبتے دیکھا تو فوری طور پر چھلانگیں لگا کر 2 بچوں کو بستی کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچا لیا جبکہ تیسرے بچے واسف کی لاش کی تلاش کے لیے تاحال ریسکیو 1122 کی ٹیموں کا آپریشن جاری ہے۔ جی ٹھیک، شکریہ فیض رسول۔ سیالکوٹ میں پولیس کی بڑی کارروائی، 8 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا۔ ڈاکوؤں سے 2 کروڑ سے زائد رقم برآمد کر لی۔ ڈاکوؤں نے ادویات سے بھرا کروڑوں روپے مالیت کا ٹرک لوٹ لیا تھا۔ ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے ڈی پی او مستنصر فیروز اوان نے خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی۔ پولیس کی خصوصی ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے برآمد شدہ مال مسروقہ مالکان کے حوالے کر دیا ہے۔ سیالکوٹ میں پولیس نے ایک بڑی کارروائی کی ہے، 8 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کیا ہے۔ ڈاکوؤں سے 2 کروڑ سے زائد رقم برآمد کی ہے۔ ڈاکوؤں نے ادویات سے بھرا کروڑوں روپے مالیت کا ٹرک لوٹ لیا تھا۔ ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے ڈی پی او مستنصر فیروز اوان نے خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی۔ پولیس کی خصوصی ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے برآمد شدہ مال مسروقہ مالکان کے حوالے کر دیا ہے۔ مزید بات کریں گے نمائندہ نیو نیوز عثمان اقبال سے۔ عثمان، سیالکوٹ پولیس کی بڑی کارروائی تفصیلاً بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ سیالکوٹ پولیس نے بڑی کارروائی کی ہے اور اس کارروائی میں 8 رکنی جو ڈکیت گینگ ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ڈاکوؤں سے 2 کروڑ سے زائد کی جو رقم ہے وہ برآمد کر دی گئی ہے۔ 6 ماہ قبل جو ہے وہ ڈاکوؤں نے جو ہے وہ صدر سرکل کے علاقہ میں ادویات سے بھرا ہوا کروڑوں روپے مالیت کا جو ہے وہ ٹرک لوٹا تھا اور ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے ڈی پی او سیالکوٹ مستنصر فیروز اوان نے جو ہے وہ خصوصی ایک ٹیم تشکیل دی تھی جنہوں نے کارروائی کرتے ہوئے 8 جو رکان ہیں جن میں منیر احمد، جہاں زیب، ارشاد، جواد، علی حیدر، فیصل، ذوالفقار اور عبدالستار کو گرفتار کر کے ان کی قبضے سے جو ہے وہ بڑی رقم برآمد کر دی ہے۔ اور پولیس کی جو اس خصوصی ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور 2 کروڑ سے زائد کی رقم اور مال مسروقہ جو ہے وہ برآمد کر کے مالکان کے حوالے کر دیا ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ عثمان اقبال سیالکوٹ سے بتا رہے تھے۔
मंडी बहाउद्दीन में 2 अंधे कत्ल के मुलजिमान आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मंडी बहाउद्दीन थाना मियाना गोंदल के इलाके हजन का रिहायशी मोहम्मद अकरम उर्फ बाबर रात को अपने ससुराल से घर जाने के लिए रवाना हुआ। सुबह उसकी नाश साडोवाल वाली पुल के करीब से मिली। जो मुद्दईयान ने मुकदमा अपने मुखालिफिन अरशद, जीशान और उस्मान वगैरह के खिलाफ दर्ज कराया। मुकदमा की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए डीपीओ मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद नासिर सयाल ने डीएसपी सीआईए मोहम्मद आमिर शाहीन गोंदल को अंधे कत्ल को ट्रेस करने और मुलजिमान की गिरफ्तारी का टास्क दिया। उन्होंने असल मुलजिमान वकास अहमद, वालिद अफजल गोंदल और शुएब वालिद मनासिर अली को ट्रेस करके आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है। मेलसी पुलिस का जराइम पेशा नाजिर के खिलाफ क्रैकडाउन। नकबजनी की वारदातों में मुलविस रिजवान गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार करके 5,90,000 मालियत का माल मसरूका और असलहा भी बरामद कर लिया। थाना मोतरो के इलाके में मकान और दुकानों की छतें फाड़कर चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र खुसूसी टीम तश्कील दी गई। इसने न सिर्फ गैंग को ट्रेस किया बल्कि उनके कब्जा से भारी माल मसरूका भी बरामद किया। पुलिस ने बरामद सामान मुतासिरीन के हवाले कर दिया। घोटकी के नवाही गांव में मुलजिम की 7 साल बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती। थाना दादुल लगारी में पुलिस ने शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। घोटकी के नवाही गांव अला डेटो लगारी के बच्ची के वालिद अब्दुल लतीफ लगारी ने दरख्वास्त दी कि उसकी बच्ची को एक मुलजिम जफर लगारी ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है। उनका कहना था कि मुलजिम ने एक मकान में ले जाकर बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती की है। दाद लगारी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि बच्ची का मेडिकल करा लिया गया है। रिपोर्ट आने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गुजरांवाला न्यूज़ की निशानदेही पर कोट जान बख्श में तालीमी इदारों की सरकारी जमीन पर कब्जा वागजार कराने के लिए ऑपरेशन शुरू हो गया है। कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं गुजरांवाला से शफकत इमरान। जी शफकत, आगाह कीजिएगा मजीद। बिल्कुल, जिस तरह आप जानते हैं कि बाकायदा हमने निशानदेही की थी कि कोट जान बख्श जो गुजरांवाला का एक नवाही गांव, वहां पर जो सरकारी मालियती ज़मीन थी उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था और बाकायदा वो स्कूल की ज़मीन थी, जो गर्ल्स स्कूल था बच्चियों का और एक साथ ही जो है वो बॉयज़ स्कूल था जो एलिमेंट्री था, उसके ग्राउंड पर उसके दीगर हिस्सों पर कब्जा था। वहाँ पर जो है बाकायदा हवेलियाँ बना ली थी, जिस पर गवर्नमेंट ने बहुत सख्त एक्शन लिया और बाकायदा जो है वो कमिश्नर साहब ने AC वजीराबाद को तैनात किया और उन्होंने अपनी निगरानी में ना सिर्फ उसकी इंक्वायरी की बल्कि तमाम की तमाम जगह जो है वो वागुजार करा दी है। मेरे साथ AC वजीराबाद मौजूद हैं, हम उनसे कुछ सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अब देखें, बाउंड्री वॉल जो थी स्कूल की वो पूरे रकबे पे नहीं थी बल्कि कुछ रकबा छोड़ा हुआ था। तो वक्त के साथ फिर जो लोकल लोग हैं उन्होंने देखा कि यहाँ पे इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ तो उन्होंने उसको अपने ज़ेर इस्तेमाल मवेशियों की हवेलियाँ और डेरे शेरे बना लिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको यकीनन अप्रिशिएट करूँगा, न्यूज़ को आपने हाईलाइट किया और फिर तमाम महकमों ने, एजुकेशन था, रिक्लेमेशन डिपार्टमेंट इसमें साथ था और रेवेन्यू, उन्होंने सारों ने मिलकर इसको वागुजार करने में कामयाब हुए हैं और अब ये सारा रकबा जो स्कूल का था वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमने हैंड ओवर किया है। बहुत शुक्रिया। जिस तरह उन्होंने AC साहब ने एक और बात बताई कि महकमा तालीम को बार बार कहा गया है कि अपनी जगह को अब हैंड ओवर करें और स्कूल के इर्द गिर्द 4 दीवारी करें ताकि किसी को कल को जुर्रत न पैदा हो सके महकमा तालीम की जगह पर। मनकीरा में महकमा जंगलात ने वज़ीर-ए-आज़म का बिलियन ट्रीज मंसूबा नाकाम बना दिया। दर्जनों एकड़ पर लगाए गए पौधे मुनासिब देखभाल न होने से तबाह हो गए। महकमा मुलाजमीन ने नहर का 8 घंटे पानी मुबैना तौर पर मुकामी काश्तकारों के हवाले कर दिया। पौधे खराब होने से कौमी खजाने का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस बारे में मजीद आपको बता रहे हैं कि मनकीरा में महकमा जंगलात ने वज़ीर-ए-आज़म का बिलियन ट्रीज मंसूबा नाकाम बना दिया है। दर्जनों एकड़ पर लगाए गए पौधे मुनासिब देखभाल न होने से तबाह हो गए। अलीपुर के रूरल हेल्थ सेंटर खैरपुर सादात में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम की धज्जियां उड़ा दी गई। पाकिस्तान भर में एक तरफ दरख्त लगाए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब सरकारी अस्पताल में मौजूद कीमती दरख्त काटने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान भर में एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुहिम के तहत दरख्त लगाए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब सरकारी अस्पताल में मौजूद कीमती दरख्त काटने का सिलसिला जारी है। RHC सेंटर खैरपुर सादात के मुलाजमीन के घरों के चूल्हे सरकारी लकड़ियों से जलने लगे। अस्पताल मुलाजिम सईद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि दरख्त रूरल हेल्थ सेंटर के SMO डॉक्टर खालिद के हुक्म पर काटे हैं और ये सिलसिला अरसा दराज से जारी है।
टांग के इलाके गिरा बलोच की वॉरन नहर नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के बायस कई बार टूट चुकी है। नहरी पानी की अदम दस्तयाबी से लाखों एकड़ जमीन बंजर हो गई, जबकि कई देहात पीने के साफ पानी से महरूम हो गए हैं। गोमल जोम डैम से निकाली गई वॉरन केनाल फिर टूट गई। किसान शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। कहते हैं मकई और दीगर फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन पानी दस्तयाब नहीं है। नहर टूटने से जहां काश्तकार फसलों की आबपाशी से महरूम है, वहीं 38 देहात के लोग पीने के साफ पानी से भी महरूम हैं। हुकूमत ने अगर बर वक्त नहर की मरम्मत ना की तो लाखों एकड़ जमीन बंजर होने का खदशा है। करक में कौमी लोया जिरगा का धरना 8वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुतालबात में 9 अरब 60 करोड़ रुपए तेल और गैस रॉयल्टी रिलीज किए जाने का मुतालबा भी शामिल है। तेल और गैस कंपनियों में मुकामी लोगों के लिए रोजगार, वाटर सप्लाई मंसूबे और सड़कों की तामीर भी शामिल है। सूबाई हुकूमत ने कौमी लोया जिरगा से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी है। कबायली मुशीरान और हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात का पहला दौर कल होगा। मट्टा में एसपी अपर सवात फरहानुल्लाह खान ने थाना में एलीट में पुलिस फोर्स बार का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस फोर्स बार से एलीट फोर्स को बेहतर सहूलत फराहम होंगी। सवात की सब डिविजनल हेडक्वार्टर मट्टा में एलीट फोर्स बार का इफ्तिताही तकरीब का इख्तिताम किया गया, जिसकी मेहमान खुसूसी एसपी अपर सवात फरहानुल्लाह थे। इस मौका पर डीएसपी मट्टा सर्कल पीर जरबाद शाह, सर्कल SHOs और इलाका उमायदीन भी मौजूद थे। एसपी अपर सवात फरहानुल्लाह खान का कहना था कि इलाके में जराइम पेशा अनासिर का खात्मा समेत इलाके में अमन व अमान बरकरार रखना सवात पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। चकवाल के इलाके नकाकहोट पुल पर मियांवाली जाने वाली कार और सामने से आने वाले ट्रक में तसादम हो गया। 2 अफराद मौका पर जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। चकवाल के इलाके धराबी पुल पर ट्रैफिक हादसे के जख्मियों को सिटी अस्पताल तलागंग मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराए और इब्तदाई इतलात के मुताबिक कार में सवार एक ही खानदान के 2 खवातीन और 2 मर्द थे। इनमें से एक मर्द समेत खातून मौका पर जाँ बहक हो गई और शदीद जख्मी खातून समेत 2 अफराद को सिटी अस्पताल तलागंग मुंतकिल कर दिया गया। 3 माह के तवील लॉकडाउन के बायस शादी हाल बुरी तरह मुतासिर हैं। तकरीबात पर पाबंदी की वजह से हजारों मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। मालिकान को रोजाना लाखों का नुकसान होने लगा। परेशान हाल मालिकान के SOPs के तहत मैरिज हाल खोलने का मुतालबा। मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद शाबान। जी शाबान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लॉकडाउन के बाद जहाँ पे दूसरे कारोबार मुतासर हुए हैं, वहीं पे मार्की और मैरिज हाल बंद होने की वजह से, क्योंकि शादी ब्याह व दीगर तकरीबात भी बंद हैं, इस वजह से इनको भी लाखों का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान है। हमारे साथ मालकान मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं जी। देखें, मार्की मालकान हो गए या मैरिज हाल हो गए, वो लोग तो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप ये देखें जो वेटर हजरात हैं या सिक्योरिटी वाले हो गए या हमारे अपना वेटर हजरात, मार्की मैनेजर वगैरह हो गए, सारे सफ़र कर रहे हैं। उसके अलावा आप ये देखें वेंडर हजरात हैं जो गोश्त वगैरह प्रोवाइड करते हैं या ग्रोसरी वाले हैं, वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर फोकस करे और SOPs के थ्रू हमारा ये जो है अपना इसको चलाने का अलाउ किया जाए, ताकि हम अपने कारोबार को दोबारा से चला सकें और रोज़गार फराहम कर सकें। और पाकिस्तान इतना मजबूत मुल्क नहीं है कि हम इसको ज़्यादा देर होल्ड ऑन कर सकें। पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा, मतलब पाकिस्तान में गुर्बत पहले बहुत ज़्यादा है, तो इस पर फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैरिज हाल मालकान का भी कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि SOPs के तहत इनको दोबारा जो है वो खोला जाए, ताकि इनके साथ जो हज़ारों लोग वाबस्ता हैं जो इनके साथ कारोबार कर रहे हैं, उनके जो है वो चूल्हे जल सकें। जी, शाहकोट में पाबंदी के बावजूद तमाम एहतियात बालाए ताक रखकर मवेशी मंडी लगी। खरीदार और व्यापारी बगैर मास्क पहनने बड़ी तादाद में मवेशी मंडी में मौजूद हैं, ताहम इंतजामिया मंजर आम से गायब है। मजीद बताएंगे शाहकोट से नुमाइंदा न्यू कामरान अली। जी कामरान, मजीद कहिएगा। शाहकोट में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बलाए ताक रख दी गई हैं। शाहकोट में मवेशी मंडी तो सज गई है, लेकिन यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद नहीं कहीं पर भी दिखाई दे रहा है। और ना तो फेस मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ व्यापारी है, इससे बात करते हैं और जानते हैं कि इसका इस हवाले से क्या कहना है। पहले तो हालात नाजुक थे, अब उम्मीद है कि लोग ईद उल अज़हा आ रही है, अब हालात बेहतर हो जाएंगे, तो अमेरिका भी चाहिए कि हमारे साथ तावन करें। जी, इनका कहना है कि 3 माह से इनके जो घरों के चूल्हे हैं वो ठंडे पड़े हुए हैं और वो फाका कशी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, और इंतजामिया को भी चाहिए कि SOPs पर अमल दरामद करवाए और इनके साथ तावन करे, ताकि जो कोरोना वायरस मूजी वबा है इससे बचा जा सके। जी
حالیہ پیٹرول اور ڈیزل بحران نے کاشتکاروں کو بھی پریشان کر دیا۔ نوشہرہ ورکا میں دھان کی فصل متاثر، مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ نیوز میاں عمر محمود سے۔ جی عمر محمود، مزید بتائیے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں نوشہرہ ورکا کے پیٹرول پمپ پر۔ نوشہرہ ورکا میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی ہوتا ہی پیٹرول اور ڈیزل نایاب ہو گیا ہے۔ زمیندار در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ اس وقت میں سارے ایک زمیندار موجود آئے، ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ یہ ہمارے دھان کی پنیری بالکل تیار ہو چکی ہے، اب اس کو کھیتوں میں منتقل کرنا باقی ہے اور اس کے لیے ڈیزل کا ملنا بہت ضروری ہے۔ میں نوشہرہ ورکا کے صبح سے لے کے ابھی تک جتنے بھی پیٹرول پمپ ہے ان پر در بدر کی ٹھوکریں کھا چکا ہوں، مجھے ڈیزل کا ایک قطرہ نہیں ملا۔ اور نوشہرہ ورکا کی آبادی جو ہے اس کا 80% انحصار دھان کی فصل پر ہوتا ہے۔ میری اللہ حکام سے اپیل ہے کہ وہ نوشہرہ ورکا میں پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ جی جیسا کہ آپ نے زمیندار کی بات سنی کہ زمیندار کا کہنا ہے کہ دھان کی فصل ہماری بالکل تیار ہے، ہمیں کسی پیٹرول پمپ سے ڈیزل نہیں مل رہا۔ اعلیٰ حکام نوٹس لے اور نوشہرہ ورکا میں پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی کی یقینی بنایا جائے۔ تھرپارکر میں احساس کفالت کے سینٹر پر پیسوں کی تقسیم بند کر دی گئی۔ دور دراز علاقوں سے آنے والی خواتین پریشانی کا شکار، حکام بالا سے نوٹس کی اپیل کر دی۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں مٹھی سے مریم صدیقہ۔ جی مریم، بتائیے گا۔ جی اس وقت میں احساس کفالت کے سینٹر پہ موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ احتجاجاً جو ہے جو احساس پروگرام کے جو پیسوں کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی وہ روک دی گئی ہے، کیونکہ 2 گروپوں میں یہاں پر لڑائی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو ایک گروپ تھا اس کو جو ہے انتظامیہ کی جانب سے ان کی آئیڈیاں بلاک کر دی گئی ہیں، اس وجہ سے پیسوں کی ڈسٹریبیوشن بند ہو گئی۔ اور احتجاجاً جو دوسرا جو یہاں پر تیسرا جو گروپ موجود تھا اس نے بھی جو ہے احتجاجاً کام چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہو گئے ہیں یکجہتی کے طور پر۔ مگر اس سب میں جو نقصان ہو رہا ہے تھرپارکر سے جو دیہی علاقہ جات سے آنے والی خواتین ہیں وہ یہاں پر دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بوڑھی خواتین جو ڈنڈے کے سہارے پر چل رہی ہیں وہ بھی جو ہے پریشان ہیں، کیونکہ دور دراز علاقوں سے آنے والی خواتین صبح سے گھر سے بھوکی پیاسی نکلی ہوئی ہیں کہ جلد سے جلد ہمارا کام ہو جائے۔ اور اس پہ شدید گرمی ہے جہاں پہ نہ پانی کا انتظام ہے نہ کوئی اور دوسرے دیگر انتظامات ہے۔ دھوپ کے اندر درختوں کے سائے میں یہ موجود ہیں مگر انہیں پیسے دیے نہیں جا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو ہے مسائل یہ حل کیے جائیں تاکہ ہمیں جو ہے آسانی ہو اور ہم ٹائم سے اپنے گھر جا سکیں، کیونکہ تھرپارکر کا وہ علاقہ جو ہے وہ مٹی شہر اتنا دور ہے کہ یہاں پر دیہی علاقہ جات سے ٹیکسیاں کرا کر آنا پڑتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ٹیکسیوں کا کرایہ بھی جو ہے ہمیں دینا پڑے گا اور ہمیں انتہائی پریشانی ہے۔ انتظامیہ سے یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ڈیوائس کا جو مسئلہ ہوا ہے، جو بھی ان کی لڑائی ہے وہ ختم کی جائے تاکہ دیہی علاقہ جات سے آنے والی خواتین اور جو بوڑھے حضرات ہیں، جو مرد حضرات یہاں پر پیسے لینے آ رہے ہیں، انہیں رقم دے کر گھروں پر روانہ کیا جائے۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ سبی میں مرغی کی قیمت میں 50 روپے اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد فی کلو گرام قیمت 280 روپے ہو گئی۔ دوسری جانب مرغی فروخت کرنے والوں کا کہنا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے باعث قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے اسی حوالے سے رمیش کمار سے۔ جی رمیش، آگاہ کیجیے گا۔ اگر بات کریں گوشت کی قیمتوں کے حوالے سے تو ملک کے دیگر شہروں کی طرح سبی میں بھی مرغی کا گوشت جو کہ 280 روپے کلو، جبکہ بکرے کا گوشت 900 روپے کلو اور بڑے کا گوشت جو کہ 550 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم ایک دکاندار کے ساتھ موجود ہیں مرغی فروش سے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ مرغی کی قیمتوں میں ایک دم اضافہ کس وجہ سے ہوا ہے۔ سر مرغی قیمتوں کی وجہ سے یہ ٹرانسپورٹ کی بندش کی وجہ سے پیٹرول کی شارٹنگ ہو گئی ہے، ساری مہنگائی ہیں، دکاندار پریشان ہیں، کاروباری حضرات پریشان ہیں کہ بھائی کیا کریں۔ کرایہ والے تو پریشان بیٹھے ہوئے، کرایے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ ابھی جو مرغی کی قیمتوں میں یہ اضافے ہو گئے، پیٹرول کے وہاں سے شارٹنگ ہو گئی ہے، تو ابھی غریب بندہ کہاں جائے سر؟ جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ جو ملک میں ایک پیٹرول کا بحران پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت معطل ہو گئی، جس کی وجہ سے جو کہ مرغی کی جو کہ قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ناروال کے شہری آٹا چینی کے لیے پریشان ہیں۔ 20 روز سے ناروال یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی مل رہی ہے، نہ ہی آٹا۔ عام مارکیٹ میں چینی 85 سے 90 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز حمزہ اکرم سے۔ جی حمزہ، اس حوالے سے بتائیے گا مزید۔ ہم موجود ہیں ناروال بس سٹینڈ پہ، جہاں کرونا جیسی وبا سے محفوظ رہنے کے لیے مسافروں کو ٹمپریچر چیک کیا جاتا ہے، ان کو سینیٹائزر کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے۔ یہاں مکمل SOP پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک مسافر موجود ہیں، آئے ان سے بات کرتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ میں ڈیلی روٹین میں جو ہے نا سیالکوٹ جاتا ہوں، لیکن اسی گاڑی میں اسی طریقے سے آتا ہوں، لیکن سینیٹائزر
मुंह पे जो है ना मतलब मास्क लगा के और इसी तरीके से सैनिटाइज़र हो के फिर ही बैठते हैं। अमूमन ज़्यादातर लोग कुछ जो है ना अमल करते हैं, कुछ नहीं भी करते, लेकिन मिला जुला एक जो है रुझान है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए हर सेकंड पर्सन को जो है ना कि वो अच्छे तरीके से सैनिटाइज़र हो और जो है ना मास्क मुंह पे लगाया हो। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जो है ना जितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सके करवाना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, डिप्टी कमिश्नर शाहजमान लाख की तरफ से मुकम्मल सख्ती से SOP पर अमल करवाया जा रहा है, लेकिन यहाँ अड्डा मालकान का भी कहना है कि हम SOP पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जानें महफूज रह सकती हैं। इस वबा से बचने के लिए एहतियात सबसे ज़रूरी है। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा खुराक का गोदाम गुज़िश्ता 15 सालों से बंद है। तहसीलदार खुराक कई साल से दफ्तर आने से गुरेजा हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सैयद नाजिम शाह से। जी नाजिम शाह बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है महकमा खुराक कोलू की अगर बात की जाए तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं इस वक्त जो महकमा खुराक का मेन गोदाम है जिसकी बिल्डिंग की खस्ता हाली बता रही है कि यहाँ का जो महकमा खुराक है वो किस हद तक कोलू के मकीनों से मुखलिस है। दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूँ कि कोलू में आटे का जो बोरान है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। यहाँ के जो दुकानदार हैं वो 2200 से 2500 रुपये में आटे का फी मन फरोख्त कर रहे हैं। सूबाबंदी की वजह से यहाँ आटे की शदीद किल्लत है, लेकिन महकमा खुराक जो है पिछले 15 साल से गायब है। खुराक का जो तहसीलदार है वो अपने दफ्तर में पिछले कई सालों से उसने अपने दफ्तर का शक्ल तक नहीं देखा हुआ है। यहाँ के जो मकीन हैं वो आटे की बोरान काफ़ी जो शिद्दत अख्तियार कर गया है, यहाँ के मकीन काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। जी मुल्क में हर तरफ महंगाई ही महंगाई। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अद्वियात अवाम की पहुंच से दूर हो गई। अद्वियात की कीमतों में 70% इजाफा कर दिया गया। शहरी मायूस हो गए। हुकूमत से अद्वियात की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। मजीद बताएंगे सवात से बहार अली। अगर महंगाई की बात की जाए तो अरशाई खुर्दनोश के साथ साथ दवाई की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर पेट्रोल भी नायाब है और पंपों पर जो है गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती है। अगर एक तरफ पेट्रोल जो है वो नायाब हो चुकी है, दूसरी तरफ आटा और अरशाई खुर्दनोश जो कीमत है वो भी बढ़ गई है। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा महंगाई आई है, खासकर मेडिसन और खुराक की अशिया में। तकरीबन 70-75% जो है ना मेडिसन में इजाफा हुआ है। एक चीज़ हम 100 रुपये का यानी बेच लेते हैं तो दोबारा वो आता है तो तकरीबन 200-220 का हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मसला बन गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि उनका कहना था कि जो चीज़ पहले 200 में मिलती थी अभी तकरीबन 400 और 500 में मिलती है। तो हुकूमत को चाहिए कि मेडिसन के हवाले से भी इक़दामात उठाए ताकि यहाँ की जो ज़्यादातर लोग हैं वो मेडिसन और इस तरह बुनियादी जो अशिया है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इनके मसाइल के लिए फौरी हल करे। जी पिंडी खेप में थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए दावत इस्लामी ने ब्लड कैंप लगाया। सैकड़ों की तादाद में शहरी ने खून अतिया किया। ब्लड कैंप दावत इस्लामी और जमीला सुल्ताना फाउंडेशन के इश्तराक से लगाया गया। जमीला सुल्ताना फाउंडेशन के मैनेजर इलियास हनीफ ने कहा कि मौजूदा हालात के पेश नज़र दावत इस्लामी के इकदाम की कोई मिसाल नहीं मिलती। इंसानी जान बचाना गोया सारी इंसानियत की जान बचाने के बराबर अजर रखती है। इलियास हनीफ का कहना है कि उनका इदारा थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के लिए हमवक्त कोशां है। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नायाब होगी, जबकि शहर में आवारा कुत्तों के भरमार है। इसी तरह से सिविल अस्पताल और दीगर अस्पतालों में कुत्ते के काटने की रोजाना दर्जनों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। शौकत वट्टू रिपोर्ट करेंगे। जिला भर में रोजाना 70 से ज्यादा अफराद आवारा कुत्तों का शिकार होकर सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, लेकिन डिवीजन के सबसे बड़े अलाइड और सिविल अस्पताल समेत मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में कुत्ते के काटने के इलाज की वैक्सीन मौजूद नहीं। अस्पतालों में वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कुत्ते जी मेडिसन है बहुत मुश्किलात मिलती पई है आदमी बंदियां मेहरबानी करके टीके मिल जाए। कुत्ते के काटने की जो वैक्सीन है वो यहाँ पे अस्पतालों में अवेलेबल की जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो अपना इलाज करवा सके। MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर खुरम अल्ताफ का कहना है कि अस्पताल में जो भी मरीज आता है उसे वैक्सीन लगाई जाती है और एमरजेंसी में वैक्सीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाए गए हैं। लेकिन हम मरीजों का मुकम्मल इलाज कर रहे हैं। आपको कोई ऐसा केस नहीं मिलेगा जो खुदा ना खास्ता अलाइड अस्पताल में जिसको कोई मसला हुआ हो कुत्ते काटे का। दूसरा जो फौरी तौर पर कुत्ते काटे का आता है ना, जिसका बहुत शॉर्ट टाइम होता है, उसको एक अमाइनो ग्लोबुलिन बड़ी महंगी एक बोतल है
हम वो भी लगाते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजा के लिए अद्वियात समेत दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए दावों की बजाय अमली इकदाम उठाए ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। हैदराबाद का वाहिद कार्डिक अस्पताल 22 रोज से बंद पड़ा है। इलाज के लिए आने वाले सैकड़ों मरीजों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से चलते हैं हैदराबाद और जानते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद नासिर शेख से। जी नासिर शेख, बताइएगा मजीद। हैदराबाद के ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 2 का ये कार्डिक हॉस्पिटल, जो कि दिल के अमराज का सबसे बड़ा अस्पताल है, गुज़िश्ता 22 रोज़ से जो है वो बंद है। इसकी बुनियादी वजह जो है वो इंतज़ामिया की आपस की चपकलिश और जो है वो कोरोना के असरात बताए जाते हैं। लेकिन ये अस्पताल जो है वो 22 रोज़ से मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से न सिर्फ हैदराबाद बल्कि दीगर अजला से जो है वो दिल के अमराज के में मुब्तला मरीज़ों को इलाज की किसी किस्म की सहूलत नहीं है। या तमाम जो है वो कमरों पर ताले लगे हुए हैं, OPDs बिल्कुल बंद है, डॉक्टर्स ने आना छोड़ दिया है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ जो आपस की रस्साकशी है या इंतज़ामी उमूर के मामलात हैं वो इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कोई भी यहाँ पर आकर काम करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर एहतजाज भी कर रहे हैं कि ये अस्पताल खोला जाए, लेकिन इंतज़ामी मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, जिसके सबब दिल के अमराज का ये बेहतरीन अस्पताल, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर आकर इलाज करवाते थे, लेकिन अब बंद पड़ा है। जी, बहावलनगर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही पेट के अमराज फूटने लगे। रोजाना की बुनियाद पर 200 से ज्यादा गैस्ट्रो के मरीज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचने लगे। डॉक्टर्स ने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घर से निकलने और खाने पीने वाली मशरूबात में एहतियात करने के हवाले से मशवरे भी दिए हैं। बहावलनगर में गर्मी की शदीद लहर के दौरान गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी। रोजाना की बुनियाद पर गैस्ट्रो के दर्जनों मरीज DHQ अस्पताल का रुख करने पर मजबूर हैं। डायरेक्टर एमरजेंसी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर आमिर रफीक भट्ट कहते हैं, शदीद गर्मी में शहरी घर से बाहर निकलने में एहतियात से काम लें। अभी कोरोना का खौफ खत्म नहीं हुआ कि नई वबा फूट पड़ी। शहर में मुज़र सेहत पानी गैस्ट्रो के मर्ज में इजाफे का बाइस बन रहा है। फोटाबास और इससे मुल्हिका चोलिस्तान में एक बार फिर टिड्डी दल के हमले शुरू हो गए। महकमा ज़राअत महदूद वसाइल में स्प्रे करने में मसरूफ़ अमल है। चोलिस्तान में एक बार फिर टिड्डी दल ने हमला कर दिया। नवाही इलाके 250, 251, 253 और 254 HL में टिड्डी दल ने फसलों पर धावा बोल दिया। महकमा ज़राअत महदूद वसाइल से स्प्रे करने में मसरूफ़ है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत बहावलनगर शेख महमूद इकबाल टिड्डी दल को तलब करने वाले ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। टिड्डी दल के हमले से कपास और चारे की फसल को शदीद नुकसान का अंदेशा है, जबकि मुकामी काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत टिड्डी दल के खात्मे के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दाम करे। राजनपुर में टिड्डी दल ने फसलों में तबाही मचा दी। टिड्डी दल के हमलों से बिलखुसूस कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी वजह से मतलूबा टारगेट हासिल नहीं हो सकेगा। राजनपुर में 3.5 लाख के करीब हर साल रुई की गांठ की पैदावार हासिल की जाती है, लेकिन इस बार टिड्डियों के हमलों की वजह से 2 लाख 2.5 लाख रुई की गांठ की पैदावार हासिल होगी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इस्लाहात नवीद इस्मत के मुताबिक सूबे भर में रुई की 75 लाख गांठों की पैदावार के हदफ के हसूल के लिए फील्ड फॉर्मेशंस को टास्क सौंप दिया गया है। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की मुरतब करदा सिफारिशात कपास के काश्तकारों तक बर वक्त पहुंचाई जा रही हैं। मार्केटों में मियारी ज़राई मुदाखिल की मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। मिलावट और नाजायज़ मुनाफाखोरी के मकरूह धंधे में मुलविस अनासर के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सूरज का पारा है, जमीन वालों पर आग बरसाने लगा। टोबा टेक्सिंग में गर्मी के सताए नौजवान नहर में डुबकियां लगाने पहुंच गए। भागट बंगला नहर पर मंचलों का हुजूम उमड़ आया। मजीद बताएंगे जफरुल्ला। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर टोबा टेक्सिंग में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंच गया। शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। टोबा टेक्सिंग में नौजवान गर्मी से छुटकारे के लिए बागट बंगला नहर का रुख कर लिया। खूब डुबकियां लगाईं और ठंडे पानी में अटकेलियां भी की। न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया, शदीद गर्मी में नहर के ठंडे पानी में नहाने का अपना ही लुत्फ है। गर्मी दी शदीद मसलन गर्मी पै रही है, उसले मतलब नहाने वास्ते असीं नहरां ते आने आ कि इहदा मतलब ये वा कि कोरोना थोड़ा साडा खत्म हो जाएगा। आज गर्मी बहुत ज्यादा, इसलिए आज हम सारे यहाँ नहाने आए हैं।
ठीक है। तो घर में बैठे हुए हैं सारे, तो टाइम नहीं गुजरता, इसलिए हम यहाँ नहाने आए हैं। टेम्परेचर 42 सेंटीग्रेड है, इस वजह से हम गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए, नहाने के लिए, कूल होने के लिए आए हैं। नौजवानों का कहना था गर्मी में कोई और खेल तो खेला नहीं जा सकता क्योंकि उससे गर्मी और लगती है। नहर और ट्यूबवेल पर नहाने से गर्मी तो दूर होती है, साथ में तफरीह भी हो जाती है। कैमरामैन अली अहमद के साथ जफरुल्लाह खान, नुमाइंदा न्यूज़, टोबा टेक सिंह। गर्मी बढ़ते ही पसरूर में गन्ने के रस की दुकानों पर रश लग गया। शहरी कहते हैं गन्ने का रस सेहत के लिए भी मुफीद साबित होता है। पसरूर से देखते हैं नुमाइंदा न्यूज़ हसन रजा की ये रिपोर्ट। सूरज का पारा चढ़ते ही गन्ने के रस की मांग बढ़ जाती है। गन्ने का रस सख्त गर्मी में बेहतरीन और फायदेमंद मशरूब है जो जिगर की गर्मी और महदे के अमराज के लिए बेहद मुफीद है। गन्ने का रस एक ऐसा मशरूब है जो सस्ता होने के बाइस हर खासो आम को मुअस्सिर है। गर्मियों में गन्ने के रस से ब्लड प्रेशर को कम किया जाता है। मैदे की तजाबियत के लिए भी इंतहाई मुफीद माना जाता है। रोज जड़ी है गर्मी की शिद्दत नू कम कर दी है तो मुख्तलिफ बीमारियां तो बचाती है। गन्ने का रस एक मुनाफा बख्श कारोबार भी है जो आप गन्ने का रस निकालने वाली मशीन खरीद कर आसानी से शुरू कर सकते हैं। गर्मियों का मौसम पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में ज्यादा देर तक रहता है, इसलिए इस कारोबार में नुकसान का अंदेशा ज्यादा नहीं होता। हसन रजा, न्यूज़, पसरूर। सियालकोट में मुआविन खसूसी उस्मान डार इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ DPO साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ख़ास शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ फैसल यूसुफ साहब का, DG PITB पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का। बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ये सारा ऐप का सिस्टम डेवलप किया है। ये 2 वे कम्युनिकेशन भी है, मैसेजिंग भी हो सकती है, उस पर भी ये मज़ीद आगे काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर के लिए। कोरोना पैंडेमिक में आपकी सर्विसेज के अलावा भी आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि मुल्क की खिदमत करनी है आप लोगों ने आगे भी। जैसे ये आपको बता रहे थे कि बहुत एक शिकायत आती हैं प्राइसेस के हवाले से कि जी ये कीमतें जो हैं वो काबू से बाहर हैं, तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने तैयार रहना है। प्राइस कंट्रोल एक बन रहा है बीच में ऐप में आपके लिए आइकन, ताकि गली मोहल्ले की सतह पे अगर जहां कोई खुद साख्ता महंगाई कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट के कीमतों के अलावा वो महंगा बेच रहा है, तो आप उसकी भी इंशाल्लाह ताला निशानदेही कर सकेंगे, ज़हीरानंदोज़ों की निशानदेही कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए मैंने फिर आपको कहा है कि सबसे पहले आपकी अपनी कमिटमेंट जरूरी है कि आप नेक नीति के साथ आप ये काम करना चाह रहे हैं। किसी के साथ आप एक कोई पर्सनल ग्रज या इलाके की सतह पे जी मैं अगर कोई टाइगर फोर्स का नौजवान, DPO साहब यहाँ बैठे हैं, DC साहब सुन रहे हैं, अगर हमारा टाइगर फोर्स का कोई नौजवान गलत निशानदेही करता है, अगर वो विक्टिमाइजेशन करता है, तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। किसी सतह पे भी ये नहीं होगा कि टाइगर फोर्स के हमारे नौजवान एक जाती तौर पे एजेंडा लेके मैदान में आ जाएं। आप लोगों ने हमेशा जो डायरेक्शंस आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलनी है। उस्मान डार सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रहे थे। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मीरपुर माथेलो के नवाही इलाका सदीक में पताई माइंस को 10 फीट शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें ज़ेर आब आ गई। कपास, मूंगफली और गन्ने की फसलों में पानी जमा है, जिससे किसान परेशान है। महकमा इनहार का अमला इत्तला देने के बावजूद भी ना पहुंचा। इलाका मकीन अपनी मदद के आप तहत शिगाफ को बंद करने में मसरूफ़ हैं। न्यू बना पाकिस्तानियों की आवाज़ सुहावा में शदीद लोड शेडिंग और कम वोल्टेज के हवाले से न्यू न्यूज़ ने खबर नशर की थी। इस पर चेयरमैन आइस्को शाहिद इकबाल ने फौरी नोटिस लिया और लोड शेडिंग ना करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ शेख अली रजा से, जो इस वक्त DOC सुहावा के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा इस हवाले से मजीद।
روز ہم نے خبر نشر کی تھی کہ سہاوا شہر میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ گرمیوں میں بھی کی جا رہی ہے اور صبح سے شام تک جو ہے وہ بجلی جو ہے بند کر دی جاتی ہے، اور خبر نیو پہ نشر ہوتے ہی جو ایس کیو چیئرمین ایس کیو اقبال شاہد صاحب نے فوری نوٹس لیا اور جو مرمتی کام تھا، جو نئی لائنیں ڈالی جا رہی تھی، وہ عارضی طور پہ وہ کام بند کر دیا اور باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ اور ابھی ہم اس وقت سہاوا وابٹہ آفس میں موجود ہیں اور میرے ساتھ ایس ٹی او وابٹہ موجود ہیں، یہ ان سے جانتے ہیں۔ اچھا، جیسے یہ خبر چلی تھی اپنا نیو پہ تو چیف ایگزیکٹو صاحب نے اس کا فوراً نوٹس لیا اور ہماری ایک لائن جو ٹرانسمیشن لائن تھی منگلا سے وہ بن رہی تھی، اس کے لیے ہم یہ شیڈیول ہمارا 4 سے جو ہے صبح 7 سے 11 بجے تک تھا، اس کو انہوں نے فوراً جو ہے نا پبلک انٹرسٹ میں سسپینڈ کر دیا کہ وہ جب تک گرمی کی شدت کم نہیں ہوتی اس وقت تک یہ کام ہم جو ہے نا اس کو نہیں کریں گے۔ جی بالکل، انہوں نے جو ہے نوٹیفیکیشن کا بتاتے ہوئے ساتھ سہاوا اعلان سہاوا کے لیے بڑی خوشخبری یہ بھی دی ہے کہ سہاوا میں جو لو وولٹیج کا کئی دہائیوں سے جو مسئلہ تھا وہ بھی اب حل ہو جائے گا اور گریڈ اسٹیشن باقاعدہ منظور ہو گیا ہے اور وہ بہت جلد اس کا جو کام ہے تعمیراتی وہ شروع کر دیا جائے گا۔ فیصل آباد میں خستہ حال عمارتیں مونسون کی بارشوں کے پیش نظر شہریوں کے لیے خوف کی علامت بن گئی۔ متعلقہ اداروں نے ان عمارتوں کو عرصہ دراز سے خطرناک قرار دے رکھا ہے۔ حکام ان عمارتوں کو مسمار کرنے کے بجائے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ فیصل آباد سے رپورٹ کریں گے ساجد خان۔ مونسون کی آمد کے ساتھ ہی شہر کے 8 بازاروں سمیت مختلف مقامات پر قائم بوسیدہ اور خستہ حال عمارتیں شہریوں کے لیے خوف کی علامت بن گئیں۔ ان عمارتوں کو مسمار کرنے کے لیے متعدد بار احکامات تو جاری ہوئے مگر کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا، جس پر شہری انتظامیہ کو کوستے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بہت عرصہ دراز سے یہ جو ہے نا بلڈنگز ایسے ہی ہیں اور یہ کبھی بھی کسی بھی وقت یہ گر سکتی ہیں اور جب بھی گریں گی کسی نہ کسی کی جان لے کے جائیں گی۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی طرف توجہ دیں، یا تو ان کو مرمت کروائی جائے، ان کو ٹھیک کروایا جائے، یا مکمل طور پہ ان کو گرا دیا جائے۔ شہری کہتے ہیں کہ 8 بازاروں میں موجود کئی عمارتیں تو 100 سال سے بھی پرانی ہیں جو کسی بھی وقت مکینوں کی زندگی نگل سکتی ہیں۔ کیمرامین آصف نواب کے ساتھ ساجد خان، نیو فیصل آباد۔ وہاڑی میں گرمی کی شدت کے باعث شہریوں کی ایئر کولرز کی خسیں بنانے والوں کے پاس لائنیں لگ گئی ہیں۔ گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایئر کولرز کی مرمت کا کام جاری ہے۔ وہاڑی سے رپورٹ کریں گے منور حسین رجانہ۔ سورج نے آنکھیں دکھائیں تو شہریوں نے گرمی کا توڑ ڈھونڈ لیا۔ متوسط طبقے نے گرمی سے مقابلے کے لیے ایئر کولرز کی مرمت کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ اے سی نہیں لا نہیں سکنے، غریب بندے ہیں، سارے کو اتنے نہیں پیسہ جڑا اے سی چلائیے، یہ کولر ہی لے رہے ہیں، بچوں ہوا ٹھنڈی دے رہے ہیں۔ گرمی بڑھتی ہی ایئر کولرز کی خسیں بنانے والے دکانداروں کی چاندی ہو گئی۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ گرمی میں اضافے کے ساتھ گاہکوں کی بڑی تعداد خسیں بنوانے کے لیے آتی ہے۔ جو غریب لوگ اے سی وغیرہ نہیں لگوا سکتے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور کولر پنکھے لے کر جاتے ہیں، جن سے بہت کم ریٹ میں ہم پنکھا دیتے ہیں اور اے سی کے برابر کام کرتا ہے۔ سخت گرمی سے مقابلے کے لیے اے سی تو عام شہریوں کی پہنچ سے دور ہے، اسی لیے متوسط طبقے کے شہری ایئر کولرز کی کروا کر ہی گرمی کا توڑ نکال رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ منور حسین رجانہ، نیوز ویاڑی۔ بلوچستان میں سیاحتی علاقے زیارت کی چہری لذت میں اپنی مثال آپ ہے، لیکن بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نہ صرف پیداوار متاثر ہوئی بلکہ لاک ڈاؤن کے باعث سیاحوں کی کمی کی وجہ سے کاشتکاروں کو مناسب معاوضہ بھی نہیں مل رہا۔ دانش مراد رپورٹ کریں گے۔ مٹھاس اور لذت میں اپنی مثال آپ، زیارت کے سرخ اور سیاہ چیری کٹائی کے بعد منڈی تک پہنچانے کے لیے ڈبوں میں ان کی پیکنگ کی جا رہی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق چیری کا شمار ان پلوں میں ہوتا ہے جو کہ صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ کوئٹہ کی مارکیٹوں میں زیارت کے چیری کا ڈبہ 150 سے 250 روپے میں دستیاب ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سیاحوں کی تعداد میں کمی سے بھی انہیں پیداوار کا مناسب معاوضہ نہیں مل رہا ہے۔ ساتھی رپورٹر مدثر احمد کے ساتھ دانش مراد، نیو زیارت۔ کوہالہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر صابری آبشار حسین مناظر سے بھری ہوئی ہے۔ بڑی تعداد میں سیاح حسین وادیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ اس بارے میں مزید جانیں گے تاج بخاری سے۔ جی تاج بخاری، بتائیے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں صابری آبشار پہ جو کوہالہ سے 4 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف پہاڑ ہیں اور قدرت کے حسین نظارے ہیں
اور بیک پہ اگر دیکھ سکتے ہیں میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو یہ خوبصورت آبشار پہاڑوں کو چیر کے ٹھنڈا اور یخ پانی جو ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے اور سیاحوں کی بھی کافی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے. کوئی ٹکا پارٹی یہاں پہ انجوائے کر رہا ہے, کوئی مینگو پارٹی انجوائے کر رہا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پانی میں بیٹھ کے اپنے مزے سے جو ہے وہ کھانوں کو انجوائے کر رہے ہیں. بہترین اور خوبصورت سیاحتی مقامات ہیں. اگر تھوڑی تھوڑی فیسلٹیز یہاں پہ دی جائے, اچھے ہوٹل یہاں پہ بنا دیے جائیں تو میرے خیال میں یہ علاقہ جو ہے خوبصورت ترین علاقہ ہے اور دنیا بھر سے سیاح جو ہے یہاں پہ آ کر اس خوبصورت علاقے کو اور یہاں کے خوبصورت موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں. جی اس کے ساتھ ہی شہر شہر گاؤں گاؤں کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو.